Today morning, my wife was driving me to the airport, and suddenly, one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dash cam also. जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे देश में ये क्या हो रहा है? हाल ही में हमने देखा पंजाब के पटियाला में एक सर्विंग कर्नल के साथ मारपीट हुई। अब एक ऐसा ही मामला कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु से सामने आया है, जहां पर एयरफोर्स ऑफिसर के साथ मारपीट की घटना घटी है। पूरा मामला बेहद चौंकाने वाला है। एयरफोर्स के अधिकारी अपनी वाइफ के साथ कहीं जा रहे थे और इसी बीच उनके साथ मारपीट हुई है। पूरा मामला क्या है वो हम आपको अब बता दें। जानकारी के अनुसार विंग कमांडर बोस और उनकी पत्नी, जो कि स्क्वाड्रन लीडर हैं, मधुमिता, बेंगलुरु के सीवी रमन नगर स्थित डीआरडीओ कॉलोनी से एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। मधुमिता कार चला रही थीं, तभी एक बाइक सवार ने उनकी कार को रोक लिया। इसके बाद बाइक सवार ने कन्नड़ में गाली गलौज शुरू कर दी। विंग कमांडर ने बताया कि उन्होंने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ बढ़ती गई, हालात बेकाबू होते गए। विंग कमांडर ने एक वीडियो में अपनी आप बीती साझा करते हुए पूरे घटना की जानकारी दी है। तो आप सुनिए क्या विंग कमांडर कह रहे हैं कि किस प्रकार से उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। Hello everyone, I am Wing Commander Shiladitya Bose, and this is my wife, Squadron Leader Madhumita. We stay in DRDO, CV Raman Nagar, Phase 1. Today morning, my wife was driving me to the airport, and suddenly, one bike came from behind, stopped in between, stopped our way. I will show you the video of my dash cam also. He came out, started abusing me in Kannada, and then seeing that my car has a DRDO sticker, he says that you DRDO people, and says many things in Kannada, and finally she abused my wife, and then I couldn't bear it. When I was coming outside, immediately he took his key in his hand and hit me on my head, taking my blood out. I stood there shouting that this is how you people defend whom we defend. Treat a person from the army, from Air Force, or from Navy, from the defense forces. More people came surprisingly and started abusing us, that we are doing wrong things. That person, he took his stone out, started trying to hit my car. I trying to stop, he hit me on my head again. Here you can see the blood and see my condition. My wife was there, thankfully, to take me out, come in the car. We went to the police station. Presently no response. We will see it further. We are going to the hospital as per them. But this is what Karnataka has become. I believed in Kannada, but seeing the truth, the reality of main heartland Karnataka, I couldn't believe it. God help us. God gave me the power not to retaliate. Tomorrow, if law and order doesn't help me, I will retaliate. And then these people will have it. Please help me. না নিতে পারবো, আমার ফাইনালি রকম সবসময় বেরিয়ে যাবো। वे अधिकारी आगे कहते हैं कि मैंने हमला करने वालों को बताया कि हम वायुसेना नौसेना से हैं, हम आपकी रक्षा करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। सेना के अधिकारी ने कहा कि एक व्यक्ति ने पत्थर उठाकर उनकी कार पर मारने की कोशिश भी की, जो गलती से उनके सर पर जा लगा, जिससे उनके चेहरे और गर्दन पर खून बहने लगा। तो बेहद चौंकाने वाला दोस्तों ये मामला है, क्योंकि लगातार अब इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जो चिंता पैदा करती हैं।
कि वो वर्दी जिसे हासिल करने के लिए एक युवा दिन रात मेहनत करता है, वो वर्दी जिसकी इज्जत के लिए ये देश सड़कों पे खड़ा हो जाता था, आज अचानक से उस वर्दी पर हाथ उठाने की हिम्मत क्यों होने लगी है। इसी बीच लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KJS ढिल्लन ट्वीट किया है और उन्होंने एक बड़ी अहम बात कही है कि बेंगलोर ऑलवेज know it as a beautiful city with wonderful pupils living in peace and harmony. A defense forces officer get posted to 10 to 15 state during his service. Does he have to learn the language of each state before he lays down his life protecting his nation, including the people of the state? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि एक जो भी ऑफिसर है, जो इंडियन आर्मी का हो, नेवी का हो, एयरफोर्स का हो, वो अपनी सर्विस के दौरान कम से कम 10 से 15 स्टेट में जाता है, जॉब नौकरी करता है, वहां पे उसकी पोस्टिंग होती है। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि वो उस स्टेट की, हर स्टेट की लैंग्वेज को सीखे, और वो भी उस वक्त जब उस स्टेट की रक्षा के लिए, उन लोगों की रक्षा के लिए, इज्जत के लिए वो अपनी जान तक कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है। अब बताइए दोस्तों, आप क्या इस देश के अंदर हो रहा है समझ से परे है, और ऐसे इंसिडेंट लगातार बढ़ रहे हैं और हमें एक उम्मीद रहती है कि हमारी मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्री हमारे कुछ इस पूरे मामले पर कहें, लेकिन फिलहाल वहां पर एक चुप्पी है और लोग, चाहे टोल कर्मी हैं, चाहे सिविलियन हैं, चाहे पुलिस कर्मी हैं, जिसका दिल आ रहा है वो आर्मी, एयरफोर्स ऑफिसर हों, जवान हों, JCOs हों, उनके ऊपर हाथ उठा रहे हैं। और इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि जो देश को सुरक्षित करते हैं वो खुद ही सुरक्षित नहीं है। आप पूरे मामले पर क्या कुछ सोचते हैं? आप वीडियो में कमेंट्स करके जरूर राय दीजिएगा अपनी, क्या सोचते हैं आप, क्यों ऐसे इंसिडेंट हो रहे हैं और क्यों रक्षा मंत्री और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है पूरे मामलों पर चुप है। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।